Good morning, all of you, once again. Now we are continuing our next session. Now let's start our next session. So हमने जो पहले पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. So we are going to start. So we already discussed about mole, what is mole concept, and now in this session we are going to discuss how to calculate mole. So here is the some formula to calculate mole. The first one formula is moles is equal to given mass divided by molar mass. So mole को we denoted mole by n, small n, and given mass is denoted by m, and molar mass is denoted by capital M. Okay, and there is another formula for calculation of moles. Moles is equal to given number of particle divided by Avogadro number. So mole is denoted by n, mole is denoted by n, and given number of particle is denoted by कैपिटल n, and Avogadro number is denoted by n naught. हम इसको n naught बोलेंगे. ओके, मतलब अगर if you want to calculate mole from mass से कैलकुलेट करना चाहते हो तो we can use this formula. If you want to calculate mole from particle, number of particles अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, so we use this formula. And there is another formula for the calculation of mole. See this formula. The number of atom, अगर आपको नंबर पता करना है, मोल नहीं पता करना है, मतलब एक मोल में कितने नंबर होते हैं हमको पता है, उसी तरह से हाफ मोल में कितने होंगे, 0.2 मोल में कितने होंगे, वो उसके लिए फार्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. सो हियर इज द फार्मूला. नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m बाय m मल्टीप्लाइड बाय n नॉट. उसी तरीके से देयर इज अनदर फार्मूला फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस. फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस, अगर गैस का वॉल्यूम दिया हो, सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम मोल्स. STP, एट STP पर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. एट STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 1 बार प्रेशर और 1 atm अप्रोक्सीमेटली both are same. 1 bar and 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature. मतलब this type इतना अगर प्रेशर है and इतना अगर टेम्परेचर है तो वो STP कहलाता है. सो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm and 273 Kelvin डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. दिस इज लीटर. वॉल्यूम को हम लीटर में देखने वाले हैं. सो हियर दिस इज द 3 मेन फार्मूला टू कैलकुलेट मोल्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन हाउ टू कैलकुलेट मोल्स. सो सी दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल प्रेजेंट होते हैं. सो हाउ मेनी मोल. सो हियर मास इज गिवन, सो वी यूज फर्स्ट फार्मूला. सॉल्यूशन n इज इक्वल टू m बाय m. So mole is equal to given mass divided by molar mass. So here we have given carbon dioxide. So molar mass of carbon dioxide is, first of all calculate the molar mass of carbon dioxide. The molar mass of carbon dioxide is carbon for 12 and oxygen here is 2 times. So 16 plus 16, the answer comes out to be 44 gram. So the molar mass of carbon dioxide is equal to 44 gram. So here put this value in this formula. तो given mass ये जो मास हमको दिया है, here small m, so here we put 88 molar mass 44 ग्राम. तो यहाँ से इसको रख देंगे. so जब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे मोल की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 2 मोल. so this is the very simple method for the calculation of mole. now let's see other questions. What will be the mass of 5 mole of sulfur dioxide? Now you have to calculate mass. How will be the mass? You have to calculate mass. 5 mole of sulfur dioxide. 5 mole of sulfur dioxide का mass कितना होगा? So here is our formula. n is equal to small m by m. तो mole is equal to given mass divided by molar mass. We have given mole and molar mass.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड. So molar mass of the sulfur dioxide is sulfur is 32. Here 2 oxygen is given. तो 16 plus 16 is equal to 64 ग्राम. तो n is equal to 5 मोल. गिवन मास आपको कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास इज इक्वल टू 64. पुट दिस ऑल द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. सो 5 n इज इक्वल टू 5 मोल आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे एंड मोलर मास इज इक्वल टू 64. ओके, सो हियर you can solve this. 5 multiplied 64 is equal to m. तो our answer will comes out to be 320 ग्राम मास. तो कितना मास है, मतलब 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का वजन कितना होता है, मास कितना होगा 320 ग्राम. ओके, मास एंड वेट इन द अर्थ इज बोथ आर इक्वल. इफ यू कैलकुलेट मास एंड अर्थ, मास एंड वेट ऑन द अर्थ इज सेम, बट ऑन अदर space or other things it will be difference. Okay, now let's look another question. This is another. A piece of copper contain 6.022 multiplied by 10 to the power 24 एटम. एक पीस है कॉपर का, उसके अंदर इतने एटम दिए हुए हैं. How many mole of copper atom does it contain? How many mole you have to calculate how many mole, मतलब means आपको मोल कैलकुलेट करना of copper atom does it contain. So here number of particle दिए हैं यहाँ पे 6.022 into 10 to the power 24 atom means you have given number of particle. So from number of particle you have to calculate the mole. So our formula will be mole is equal to given number of particle divided by Avogadro number. So mole is equal to n, given number of particle is equal to capital N divided by n naught. So put this value in this formula, this value in this formula. So given number of particle, see this is the given number of particle, 6.022 multiplied by 10 to the power Avogadro number. This is our Avogadro number, 6.022 into 10 to the power 24. When you solve this, जब आप इसको सोल्व करोगे, the answer will be comes out to be 10 mole. So here n is equal to 10 mole. So you can calculate mole from mass, number of particles. Okay, number of particles से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. सो लेट्स लुक अनदर क्वेश्चन हियर. A sample of helium, He helium, a sample of helium gas occupy 5.6 लीटर वॉल्यूम. एक सैंपल है हीलियम गैस का, ऑक्यूपाई 5.6 लीटर वॉल्यूम. 5.6 लीटर वॉल्यूम वो लेती है at 180 mm and 273 Kelvin. So 180 mm and 273, this is the standard temperature and pressure. 180 mm and 273 Kelvin, this is the standard temperature. Okay, so how many moles of helium are present in the sample? How many moles? So you have to calculate mole. Here 5.6 liter, so here liter is given, means volume is given. So you have to use the formula of volume for the calculation of mole. ओके, मतलब यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो लीटर से अब आपको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. तो सो क्या होगा वॉल्यूम वाला फार्मूला, सी दिस फार्मूला, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 180 m and 273 Kelvin डिवाइडेड बाय 22.4. ये हमारा फार्मूला है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस at 180 m and 273 Kelvin. What is the volume of the gas at 180 m and 273 Kelvin? So volume of the gas is 5.6. So put this 5.6 in this formula, 5.6 divided by 22.4. So n is equal to 5.6 divided by 22.4 and our answer comes out to be 0.25. So here n is equal to 0.25. So this is the another formula. तीन फार्मूले हमने देखे. You have to calculate mole from mass,
number of particle, and the third one is volume of the gas at STP, standard temperature and pressure. So next question, let's see this next question. See, how many atom, in this time we have to calculate how many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur. मतलब कितने एटम और कितने मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कितने एटम और कितने मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर के प्रेजेंट है 64 ग्राम ऑफ सल्फर. 64 ग्राम सल्फर में कितने एटम है और कितने मॉलिक्यूल है. सो हियर द फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल इज एसेट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, एसेट. सो इट इज़ वेरी सिंपल. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर, अगर आप नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो, सो आवर फार्मूला विल बी दिस. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू m by m मल्टीप्लाइड बाय n नॉट. n नॉट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. सी, सो एसेट मॉलिक्यूल आप कैलकुलेट कर रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसेट इज इक्वल टू m की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 64 ग्राम. 64 ग्राम ऑफ सल्फर, तो m इज इक्वल टू 64 ग्राम. मोलर मास, मोलर मास आप निकालते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय n नॉट. n नॉट क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर. सो n नॉट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. दिस इज n नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोलर मास. फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट द मोलर मास of the acid molecule. So the molar mass of the acid molecule is molar mass of acid molecule is, यहाँ पर सल्फर, एक सल्फर के लिए कितना होता है 32 ग्राम. तो 8 हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 8, द आंसर कम्स आउट टू बी 26 ग्राम. सो दिस इज द मोलर मास. ओके, दिस इज द मोलर मास. सो हियर मोलर मास, यहाँ पे m की वैल्यू रख दो. 64 डिवाइडेड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. सो व्हेन यू सॉल्व दिस, द आंसर will be comes out to be 1.506 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल. इतने मॉलिक्यूल हैं. 64 ग्राम सल्फर अगर आप लोगे, इफ़ यू टेक 64 ग्राम ऑफ सल्फर, देन दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कम्स. इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर. मतलब अगर आप इफ यू टेक 64 ग्राम, 64 ग्राम सल्फर लोगे तो उसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसेट प्रेजेंट होंगे. एसेट एसेट एसेट. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम. देखो एक सल्फर मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम होते हैं. S8 मतलब 8 सल्फर एटम है. तो इतने वाले में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1.5. इतने सारे मॉलिक्यूल है हमारे पास. ये दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. सो इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में 8 होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 1.506 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 8. सो व्हेन यू सॉल्व दिस, द आंसर कम्स आउट टू बी 1.2048 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रॉम मोल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, देन एटम्स. 64 ग्राम ऑफ सल्फर हैव 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. 64 ग्राम, 64 ग्राम सल्फर में इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे. एंड 64 ग्राम सल्फर के अंदर इतने सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे. सी दिस नंबर, दिस इज द वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है. Okay, now let's discuss percentage composition. Let's discuss percentage composition. So what is the percentage composition?
we were dealing with the number of entities present in given sample, but many a time the information regarding the percentage of a particular element present in a compound is required. Sometimes we have required the percentage of the element in a compound. Suppose an unknown or new compound is given to you. Suppose a unknown or new compound is given to you. एक आप नहीं जानते ऐसी कोई आप चीज़ आपको दी गई. द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड आस्क इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन. पहला क्वेश्चन आप पूछोगे what is the information or what are its constituent. what is the information and what are its constituent. उसके अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है and what ratio are they present in the given compound, और वो किस रेशो में प्रेजेंट है. such information provide a check whether the given sample contain the same percentage of element. ये जो इंफॉर्मेशन है whether the given sample contain the same percentage of element is present in other words we can check the purity of given sample. First of all, we check the purity of the sample by analyzing this data. So let us understand by taking the example of water. So if you want to calculate the percentage, means if you have a compound and you want to calculate the percentage of element, suppose here it is our formula mass percent of element. जिस भी एलिमेंट का आप मास परसेंट पता करना चाहते हो तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड में उसका मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वाटर. आपको मास परसेंट कैलकुलेट करना है डिफरेंट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर. वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है. टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, वाटर एंड ऑक्सीजन. वाटर एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है H2O में और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है H2O में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द वाटर. सो मोलर मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू, हियर 2 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो 1 + 1 एक आइटम एक हाइड्रोजन का कितना था 1, तो 2 हाइड्रोजन का 1 + 1 एंड ऑक्सीजन इज 16, तो 16 एंड टोटल इज 18 ग्राम. हियर इज द, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट mass percentage of hydrogen. First of all calculate the mass percentage of hydrogen is equal to 2 into 1.008. ओके, देखो यहाँ पर हमने क्या करा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड. यहाँ पे आप सिंपल इसको 1 भी लिख सकते हो ये हाइड्रोजन के लिए. देखो हाइड्रोजन वाटर के अंदर कितना है 2 है, तो सिंपली मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है, तो सिंपली मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा. और एक हाइड्रोजन के लिए कितना था 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाय 100. को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर कितना है 11.18. और ये कितना है परसेंटेज में, मतलब वाटर के अंदर 11.18 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड. तो ऑक्सीजन कितना है वाटर के अंदर 16 ग्राम. ऑक्सीजन कितना है, सिंगल ऑक्सीजन है, तो सिंगल ऑक्सीजन के लिए हम 16 रख देंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास कितना है 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100. तो सो आवर आंसर विल बी कम्स आउट टू बी 88.79 परसेंटेज. तो कहने का मतलब है कि 11.18% ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल एंड 88.79% of oxygen is present in water molecule. Now let's look another question. What is the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol? ethanol है, एथेनॉल में कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन और कितना परसेंट ऑक्सीजन. So first you have to know the formula of ethanol. ethanol का फार्मूला पता होना चाहिए. If you don't know formula then how to
calculate the percentage. So formula of ethanol is C2H5OH. This is the formula. First of all, calculate the molar mass of the ethanol. First of all, calculate the molar mass of the ethanol. Okay, molar mass के ethanol का calculate करें. So here 2 carbon 12 plus 12 हाइड्रोजन 5, तो 5 एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 5 के लिए 5 होगा. ऑक्सीजन इज 16, तो 16 हियर कम्स अगेन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है. तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो मोलर मास ऑफ द एथेनॉल विल बी कम्स आउट टू बी 46 ग्राम. ओके, नाउ लेट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन. सो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन कितना है उसके अंदर, एथेनॉल के अंदर 24 ग्राम, मोलर मास कितना 46 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 52.14 परसेंटेज आएगा. नाउ मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है उसके अंदर, एथेनॉल के अंदर C2H5, C2H5OH कितना है यहाँ पे 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे हम. डिवाइडेड 46.0689 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज कम्स आउट टू बी 13.13 परसेंटेज. नेक्स्ट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर 1 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना था 16, तो यहाँ ऊपर 16 रख देंगे. डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये मोलर मास है मल्टीप्लाइड बाय 100. जब आप इसको सोल्व करोगे सो आंसर विल बी कम्स आउट टू बी 34.73 परसेंटेज. ओके, so this is the very most important topic of how to calculate the mass percentage of different element present in a compound. So here I am giving you a question. You have to solve this question at home and mention me in the comment box. Okay, ये question है आपका NCERT का. See this question, question number 2. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. इसमें आपको सोडियम का परसेंटेज पता करना है, सल्फर का और ऑक्सीजन का. ओके, ये इसको सोल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपने इसको सोल्व कर लिया है. ओके, नाउ सो वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन. ओके, बाय.